Very good morning, students. In our last section, I taught you about the forest fires, and this section is about the forest fires also. Means हम जो chapters पढ़ रहे हैं जितने भी इसमें इस यूनिट में ये सारे forest fires के ऊपर से लिए गए हैं. That how we can save the environment, how we can save the forest. So in this poem, I am going to explain you about the forest fire and how we can save the forest from the fire. One careless act can cause irreparable damage. Dear students, हम जैसा कहते हैं one mistake can become a huge blunder. मीन्स एक छोटी सी गलती बहुत भारी भूल हो सकती है. Here it is said that कि एक जो छोटी सी बात होगी, मतलब जो छोटी सी चीज़, छोटा सा आपने जो काम किया होगा, उससे क्या हो सकता है कि बहुत बड़ी सज़ा भुगतनी पड़ सकती है. Read and see how immense natural wealth is lost. Here we are studying about the natural wealth, and you know well that natural wealth are known only forests. Forests are known as natural wealth. Natural wealth किसको कहा गया है? Forest को. Because God has given us this beautiful thing and this natural thing by which we cannot live, or we can't live without that. Someone dropped a burning match. Here we are talking about a person unheeded by the way. Here it is telling that कि एक व्यक्ति है and he was passing by the forest and he has a cigarette in his hand and it has thrown it away. It caught on fire some underbrush. Its users did not stay. He has a burning match and he has thrown it near the forest, and that match was the cause of the fire, and that wood has the dry wood, the dry leaves, and the forest have got the fire. मीन्स जो उसने छोटी सी माचिस की तीली जलती हुई फेंकी, तो उससे क्या हुआ कि वहाँ पर जितने भी सूखे पत्ते थे या फिर पेड़ पौधे थे, उन्होंने उस फायर को पकड़ लिया. वो एक जो छोटी सी चिंगारी थी वो एक आग में बदल गई. इट कॉट ऑन फायर सम अंडरब्रश. इट्स यूजर्स डिड नॉट स्टे. दैट मीन्स जिस पर्सन ने ये काम किया वो वहाँ पर नहीं रुका, जबकि उसने देख लिया था कि वहाँ पर आग लग चुकी है. Nobody knows that there were a fire in the forest, but that person knows well because he had done that bad deed. From grass to bush, from bush to tree, so stealthily it ran. Here it has told that means जो आग फैली वो it has spread from the grass to bush and from bush to trees. मीन्स जो आग फैली वो कहाँ से फैली है? वो फैली है घास से, सूखी घास से झाड़ियों में, और फिर झाड़ियों से पेड़ पौधों में वो आग फैल गई. और इतनी मीन्स वो जो आग जो फैली वो अंदर ही अंदर बढ़ती गई, लेकिन उसको उस आग का किसी को पता नहीं चला जब तक कि वो आग ने एक बड़ा रूप नहीं ले लिया. That no one ever guessed or knew just where had fire began. Nobody knew that how it had become and how it is produced. कि वो जो आग है वो कहाँ से लगी है, कैसे लगी है, इस बारे में कोई भी नहीं जानता था. Someone built a campfire and failed to put it out. Dear friends, we know well that those are the mountaineers or some people, those passes from the forest, they do the campfire there. मतलब कि जो कैंप लगाकर जंगलों में रहते हैं, जो रिसर्च के लिए जाते हैं या फिर कोई अदर रीजन्स के लिए जाते हैं, तो वो वहाँ पर रात के समय आग को जला के रखते हैं ताकि वहाँ पर कोई भी जानवर नहीं आए. लेकिन उस आग को जलाने के बाद उसे बुझाना बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज़ क्या होगा कि बहुत तेज हवा चलेगी और वो जो आग जो होगी उस आग से पूरे जंगल में आग लग सकती है, वो आग एक बड़ा रूप ले सकती है. A breeze came and quickened the embers spread about. और फिर क्या हुआ कि बहुत तेज हवा चलने लगी, and by that breeze which was very quickened and fast, it has become
it has become a fire from the embers. मीन्स चिंगारी से क्या बन गई वो क्या बन गई, चिंगारी से आग बन गई। और जैसे जैसे वो चिंगारी आग बनती गई उसने बहुत सारे पेड़ को, बहुत सारे जो ट्रीज थे वहाँ पर, बुशेस थी, ग्रास थी, उसको अपने चपेट में ले लिया और वो धधकने लगी। एंड सून द वुड्स वर ब्लेजिंग, ब्लेजिंग मीन्स धधकना, और ये जो पूरा जंगल था वो धधकने लगा, मीन्स उसमें जो आग थी वो बहुत ही ह्यूज लगी। द फायर स्प्रेड एंड स्प्रेड, and this fire was going to spread again because it has taken the huge form. The trees that took long years to grow, और ऐसे पेड़ जिनको बड़े होने में बहुत समय लगा था वो थोड़ी सी देर में ही जलकर खाक हो गए। Stand blackened now and dead. Here it has told that when the fire has began that it was very little, but as soon as the time was passing by, at the time the fire has taken the huge form, and the trees which has taken the more days, more years for growing and for becoming the tall and large, and they have also become the blackened, means वो जलकर पूरे खाक हो गए, पूरे काले हो गए। और उसके बाद वो ट्रीज मर गए, क्यों? क्योंकि पूरे वो जल चुके थे इसलिए। Someone saw a little fire as he was passing by. Here it is said that a person was passing by that forest and he saw the fire in that forest. He did not stop to put it out. He did not even try. वो वहाँ पर उस आग को बुझाने के लिए नहीं रुका और ना ही उसने कोशिश की उसको बुझाने की। मीन्स यहाँ पे ये कहा गया है कि वो उस फॉरेस्ट से ही एक व्यक्ति गुजर रहा था, उसने उस आग को देखा भी, लेकिन वो वहाँ पर उस आग को बुझाने के लिए नहीं रुका और ना ही उसने उस आग को बुझाने की कोशिश की। He had not started it, of course. He had no time to spare. Here in this lines it is said that everyone is busy in their life, but if you are saying that it is very emergency case, then we have to leave all the work and we have to take our time for doing that. And that person, he went away from there and he didn't see and he didn't try for that and for not for the menacing the fire. उसने उस आग को बुझाने की कोशिश नहीं की। That is might start a forest fire. He did not even care. That means he has seen that fire, but he has gone away from there. But he didn't try a little bit for means उसको जो बुझाने की उसने कोई कोशिश नहीं की। उसने कोई केयर नहीं की कि आखिर अगर ये जंगल जल जाएगा तो उससे कितना बड़ा नुकसान होगा। Nobody knows that लिटिल मिस्टेक कैन बिकम अ ह्यूज ब्लंडर। एक छोटी सी गलती बहुत भारी हो सकती है। जैसा कि हमने इस छोटी सी पोएम में पढ़ा है कि एक व्यक्ति जिसने एक माचिस की तीली उस फॉरेस्ट के वहाँ पर फेंकी थी और उस माचिस की तीली ने क्या किया, उस पूरे जंगल को जला दिया। धीरे धीरे करके ग्रास से झाड़ियाँ और झाड़ियों से बड़े बड़े ट्रीज जो हैं वो जलकर खाक हो गए। धुआं निकलने लगा जंगलों से। इवन वो जो आग लगी थी उसमें वो धधकने लगी, उससे बड़ा रूप ले लिया, लेकिन वहाँ पे कोई भी रुका नहीं उस आग को बुझाने के लिए। तो जैसा कि हमने लास्ट वाले जो लेसन है उसमें हमने कुछ लाइंस पढ़ी थी जिसमें कि लॉ के बारे में बताया गया था कि हम किस तरह से आग को बुझा सकते हैं और किस तरह से हम उसकी इंफॉर्मेशन दे सकते हैं, पुलिस को कॉल कर सकते हैं, फायर ब्रिगेड को कॉल कर सकते हैं। और ये हमारी ड्यूटी है, हमारा कर्तव्य है, एंड इट इज़ अवर राइट आल्सो टू सेव द फॉरेस्ट। इसलिए हमें डियर स्टूडेंट्स, हमें जंगलों को बचाना चाहिए। अगर आप भी कहीं पर इस तरीके से कोई भी वस्तु देखते हैं, कोई ज्वलनशील चीज़ें देखते हैं, तो आपको भी उसके लिए कदम उठाने चाहिए। यू हैव टू टेक द स्टेप एंड यू हैव टू टेक द एक्शन फॉर दैट। थैंक यू।